cinema and stories cannot be judged by numbers. विदेश में बैठ के इस देश की रूरल पॉपुलेशन तक पहुंचने का विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट पॉपुलेशन आप काम नहीं कर सकते. थिएट्रिकल एक्सपीरियंस हैज बिकम वेरी वेरी एक्सपेंसिव फॉर एन एवरेज इंडियन फैमिली. एक फिल्म मेकर, एक कलाकार एक ही चीज़ चाहता है कि उसका काम लोगों तक पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, एंड वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स वो जरिया बन रही है. BQ प्राइम और NDTV के दर्शकों का बहुत स्वागत है. आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी से बात कर रहे हैं जो डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं और इनके टैलेंट की लिस्ट बहुत लंबी है. इन्होंने टीवी भी किया है, बॉक्स ऑफिस के लिए फिल्में भी बनाई हैं और OTT के ट्रांजिशन को इन्होंने बहुत खूबी तरीके से पकड़ लिया है. अपने करियर और पर्सनल लाइफ में इन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, सक्सेस भी मिली है और फेलियर्स का डटकर सामना भी किया है. पिछले 3 दशक से ये एक सच्चे कंटेंट क्रिएटर के किरदार को जी भी रहे हैं और बखूबी निभा भी रहे हैं. मीट द मैन, द ब्रांड, एंड आफ्टर द सक्सेस ऑफ स्कैम एंड स्कूप, इफ आई मे से सो, he is also the undisputed rising OTT king of India, Hansal Mehta. Hansal ji, welcome. It's a pleasure speaking with you today. Hansal जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, गुस्ताखी माफ, मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? थोड़ा ज़्यादा कह दिया, मतलब एम्बैरेसिंग है. नहीं, नॉट एट ऑल. सर, 30 साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में. आपने हर फॉर्मेट, हर मीडियम का इस्तेमाल किया है. What keeps you going? What has been your sustainability mantra all these years? Nothing, you just get up in the morning and go and do your best and start each day as if it's a new beginning. That's all. But I don't like to look back at failure, nor do I like to dwell too much on success. I think it is important to just keep moving forward, to keep living in the moment that you are in at that time. But living in the moment, as a filmmaker, you have seen the transition from TV to digital, and now you're very active on social media also. आपने ऑडियंस के टेस्ट को और व्यूअरशिप पैटर्न को कैसे बदलते हुए देखा है और किस तरह से आपने कंसीव किया है? मैंने, क्या होता है कि मैं बहुत ज़्यादा ऑडियंस टेस्ट से ज़्यादा आई ट्राई टू थिंक अबाउट व्हाट आई लाइक. आई बिलीव आई एम द ऑडियंस. सो आई हैव ऑल दीज इयर्स try to trust my audience's intelligence. जिस वक्त मैंने ऑडियंस के इंटेलिजेंस को कम ट्रस्ट किया है, उस वक्त मेरा काम भी कम सक्सेसफुल हुआ है. That is the only takeaway I've had over the years. I have learned to trust the audience, learned to have faith in the fact that they will embrace anything that is done with the correct intent. So हंसल मेहता जब कोई सब्जेक्ट चुनते हैं, चाहे वो अपने लिए चुने या ऑडियंस के लिए चुने, so what is the basis for that? What drives you to choose what you choose? Well, the subject has to give me sleepless nights. I have to it has to almost take over my existence, my being, so much that I desperately want to tell the story. It's only that. I must want to tell the story at any cost. And that has been my driving force. Particularly in the last 12 to 13 years, I try to do only what I really feel the urge to, whatever I feel strongly about. Otherwise, I don't. I prefer not to waste my time and other people's time. सर, इंडिया में कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स पर कुछ भी बनाना, फिल्में हो या सीरीज हो, बनाना थोड़ा मुश्किल होता है. आप ऐसे ही टॉपिक्स चुनते हैं, ऐसा क्यों? मुझे नहीं लगता है मुश्किल होता है. मतलब ये जो मुश्किल है वो मेरे डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करती है. बिकॉज आई डोंट सी Tyson is here. Hello, Tyson. I don't see any subject as difficult or easy. I just believe कि जो मुझे कहना है, what I believe in, and anything that is narrated with the correct intent. And the intent is never to sensationalize. Intent is never to capitalize. The intent is to tell the story in the most honest way possible. To, explore the lives of people that perhaps are forgotten in the sands of time, or people that are never thought about. The invisible people of our times.
I try to tell those stories. And the intent is only to tell stories. Intent is that of a storyteller to be as honest as possible to my craft and to the story that I'm trying to tell and to the characters that I'm trying to represent through my stories. सर तो एज अ फिल्म मेकर किसी को भी क्रिएटिव लिबर्टी उठाने की कितना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो फिक्शनल नॉन फिक्शनल के बीच में जो व्यूअर के पास रह जाए वो हूबहू वैसा ही हुआ हो, तो उसको हाउ फेयर इज दैट एंड उसका डिस्क्रेशन कैसे किया जाए? Discretion, I think it comes from immersing yourself in the story, the world of the characters, and from trying to convey the spirit of the character, conveying the spirit of the story. तो वो liberty जिसको आप कहते हैं, that is basically a device to engage the audience in the larger story. For example, Scoop. It is an adaptation of Jigna Vora's book, Behind Bars in Baikala. So I took the inspiration from Jigna Vora's character. I felt through the book that there was a lot of pain. There was this pain at being let down by her own fraternity, being victimized for something that she did not do. Now, how do I convey that? वो convey करने के लिए we had to build a larger story. So whatever is done in service of the story. So that I don't see it as a liberty. I see it as a means of crafting an engaging experience for the audience. आपने बॉक्स ऑफिस के लिए भी फिल्में बनाई हैं, अब आप ओटीटी पे भी एकदम छा गए हैं, तो वेयर आर यू मोर कंफर्टेबल नाउ इफ आई कैन आस्क, बॉक्स ऑफिस या ओटीटी? Well, I'm not. I've never been comfortable with the word box office. I don't have a particularly, romantic relationship with the box office because I believe that cinema and stories cannot be judged by numbers. The numbers, budgets, collections are best left to those who have invested in the film. My films have never lost money because there are a variety of revenues that any work of art can generate. And very often in that race for the weekend numbers, we forget that the film is made at a certain budget and its recovery is based on that. करेक्ट. तो हम मतलब सब चीज़ों को एक ही प्लेइंग फील्ड में डाल देते हैं एंड वी फॉरगेट दैट दीज आर स्टोरीज, दीज आर फिल्म मेकर्स, दिस इज एन आर्ट. एंड तो आई फाइंड इट वेरी रिडक्टिव. आई फाइंड बॉक्स ऑफिस वेरी वेरी रिडक्टिव. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ सक्सेस ऑन OTT, जो जिसको आप कह सकते हो कि हिट, whether it's Scam, whether it's Scoop. So yeah, I enjoy telling stories for OTT. सो आपने एक ऑडियंस शायद ओटीटी पे अपना बना लिया है और आपको लगता है कि आप इसी पे आगे फोकस करेंगे, क्योंकि इंटरेस्टिंगली आपकी जो बॉक्स ऑफिस की फिल्में थी वो अब ओटीटी पे ज़्यादा अच्छा कर रही हैं. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. They found their audience. They found a larger audience on the streaming platforms. And I think एक फिल्म मेकर, एक कलाकार एक ही चीज़ चाहता है कि उसका काम लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. एंड वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स वो ज़रिया बन रही है कि अगर थिएटर में कम लोग गए हैं, क्योंकि थिएटर में लोगों को जाने के लिए बहुत मोटिवेशन आज की डेट में चाहिए. द थिएट्रिकल एक्सपीरियंस हैज़ बिकम वेरी वेरी एक्सपेंसिव फॉर एन एवरेज इंडियन फैमिली. कितने लोग 700-800 रुपये की टिकट, कितने लोग उतना महंगा पॉपकॉर्न, इतनी महंगी बेवरेजेस अफोर्ड कर सकते हैं. तो वो बहुत ही सोच समझ के साल में गिने चुने 3-4 फिल्मों को देखने परिवार समेत चले जाएंगे थिएटर. बाकी फिल्मों के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं. सर पर पिछले साल 100 करोड़ के करीब मूवी टिकट्स बिके हैं. तो आपको लगता है कि 100 करोड़ क्या है इस इतने बड़े देश में? करेक्ट. 100 करोड़ कुछ नहीं है. मतलब मैं मानता हूँ कि the market is much larger. The number of tickets that can be sold, the footfalls can be much larger if we focus on cinema as an art and the theaters as a medium of exhibiting a work of art.
हमने उनको F&B आउटलेट बना दिया है. We have made them into an expensive restaurant. वो नहीं है. That is not what the cinema going experience is supposed to be. जब मैं बड़ा हो रहा था तो हम लोग सिनेमा हॉल जाते थे. फिल्म अच्छी बुरी हम सोचते भी नहीं थे, क्योंकि मतलब 1-1.5 रुपए की टिकट होती थी. हम पहुंच जाते थे. 1-1.5 रुपए बैल्कनी की टिकट होती थी, तो हम लोग पहुंच जाते थे. मतलब 60 पैसे में फिल्में देखते थे. That's how we have discovered some of the great films. We are not giving the audience a chance to discover great films, because you have made them, you have alienated a big section of the audience by the way you have priced the whole theatrical experience. तो अब क्या आपको लगता है कि कोर व्यूअर बेस अब बढ़ जाएगा या बढ़ गया है ऑलरेडी? मेरा मानना है बट तो नहीं गया. देखिए, सिनेमा एक्सपीरियंस को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो. वो जो गोइंग टू द सिनेमाज एंड वॉचिंग फिल्म्स, वो एक्सपीरियंस अपने आप में कमाल है. मैं भी उसको मतलब आज भी मेरे लिए वो सबसे कमाल का एक्सपीरियंस होता है. सो आप बट यस, ये हो गया है कि द प्लेइंग फील्ड हैज एक्सपैंडेड. देयर आर मेनी मोर वेज. जैसे शॉपिंग पहले होता था कि आपको दुकान में जाना पड़ता था, फिर मॉल्स आए. अब मतलब ऑनलाइन होता है. ऑनलाइन भी मतलब था कि एक दो मतलब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते थे. आज मतलब आपके सोशल मीडिया पर आप कपड़े खरीद सकते हो, करेक्ट, आप लग्जरी आइटम्स खरीद सकते हो. तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ एवोल्यूशन. तो उसी तरह से सिनेमा को कंज्यूम करने का, स्टोरीज को कंज्यूम करने के बहुत सारे जरिए बन रहे हैं. स्टोरी टेलिंग की बात की जाए या फॉर्मेट को लेकर के, बॉलीवुड शायद कहीं अटक गया है, लेकिन उसके उलट ही साउथ इज राइजिंग. वेयर डू यू थिंक दैट बॉलीवुड इज मिसिंग? ये नैरेटिव ही गलत है. इस I expected this answer. इस नैरेटिव को मतलब मैं आई डोंट एनकरेज और इवन क्वालिफाई दिस नैरेटिव विद एन आंसर, बिकॉज इट इज कंप्लीट नॉनसेंस. मतलब ये कौन साउथ है और कौन बॉलीवुड है? देयर इज नो नथिंग लाइक दैट. देयर इज इंडियन सिनेमा. देयर आर फिल्म्स मेड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. हिंदी इज वन ऑफ देम. एंड हिंदी लैंग्वेज सिनेमा को किसी बेवकूफ़ ने बॉलीवुड नाम दे दिया है. तो प्लीज़, मतलब मैं उस बेवकूफ़ी का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ. और ये जो नैरेटिव है ना कि साउथ की फिल्में चल रही है, वो लुक एट देयर सिनेमा, लुक एट द वे दे आर मेकिंग फिल्म्स. भाई, अच्छी फिल्म चलती है और बुरी फिल्म नहीं चलती है. उनकी कितनी फिल्म नहीं चली है, किसी ने पूछा है? किसी ने नहीं पूछा है, ना किसी ने जानने की कोशिश की है, क्योंकि आपके नैरेटिव को सूट करता है. एक स्टूपिड सा नैरेटिव सूट करता है, तो इसलिए मतलब एक कह दिया लोगों ने. तो आई एम नॉट इवन गोइंग टू क्वालिफाई दिस. ओटीटी के ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? व्हाट इज द फ्यूचर? एनी चैलेंजेस जो आपको दिख रहे हैं? चैलेंजेस ही ओटीटी के आते ही मतलब हमने बहुत देर से हमने वो जो लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग है जी, कि जो 6, 8, 10 एपिसोड में एक पूरी कहानी को कहते हैं, कुछ 3 सीज़न पर 4 सीज़न पर फैलते हुए मतलब पूरी लंबी कहानी को कहने का जो एक क्राफ्ट है, उस क्राफ्ट को हम सीख रहे हैं फिलहाल. सो वी आर ऑल इन दैट कर्व इन विच वी आर लर्निंग, क्योंकि internationally they've had, for years they've had HBO. Their television channels have been making these limited episode long form series. We have just begun to have our moment. 2017 में Sacred Games आई, and that's when we actually began to have our long format moment. And हम अभी भी सीख रहे हैं. It's only 5-6 years since the long form has sort of taken off in our country. And I'm just excited as a filmmaker कि मुझे इस तरीके से कहानी कहने का मौका मिल रहा है कि मुझे उसमें एक टाइम का बंधन नहीं है. मैं कहानी को पूरी तरह से ज़्यादा कैरेक्टर्स के साथ एक रिच तरीके से उस कहानी को बता सकूं. पर एक चैलेंज ओटीटी में ज़रूर है, वो है सब्सक्रिप्शन मॉडल. वो कहीं स्टकअप हो जाता है. आपको लगता है ये सस्टेनेबल होगा या आगे चल के जो फ्यूचर है वो एडवर्टाइजिंग से ही डोमिनेट किया जाएगा या एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मॉडल को लेके आएंगे? I don't know. I think the subscription models will get recalibrated. There will be a lot of recalibration. And अब कैसा recalibration होगा मुझे नहीं पता है, because it's Netflix is the big daddy of the subscription model. And the market has learned from them.
and now they are learning from the market. Different people have evolved different kinds of models. तो उससे वो लोग सीख रहे हैं. आई थिंक वो एडेप्टेशन इज द नेम ऑफ द गेम. जैसे उन्होंने पासवर्ड शेयरिंग पर कैप लगाया है, प्लस एडवर्टाइजिंग, पार्ट एडवर्टाइजिंग, पार्ट पासवर्ड शेयरिंग. सो वो सारे जो सब्सक्रिप्शन मॉडल्स, दे आर इंक्रीजिंग देयर बेस बाय डूइंग दैट. आई जस्ट थिंक जैसे theaters have become unaffordable, I just hope OTT platforms don't become unaffordable for the consumers. जैसे यूएस में मैं था, मैं देख रहा था लास्ट ईयर, सीइंग कि मतलब इतने सारे उधर प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको सब्सक्राइब करने में आदमी कंगाल हो जाए. वो बहुत महंगे हैं. some of the subscriptions are very very expensive. नहीं तो धीरे धीरे अब हमारे भी ऐसे सब्सक्रिप्शन बढ़ ही रहे हैं. इंडिया बाय द वे मतलब is perhaps the cheapest in the world right now, and I think जिस क्वालिटी का कंटेंट हम दे रहे हैं OTT पर आज की डेट में, आई थिंक द कंज्यूमर इज गेटिंग मोर देन इज मनी इज वर्थ. मैं बस यही चाहता हूँ कि ये जो हम बनाते हैं उसका पेनिट्रेशन जितना टीवी का है इन द टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज, वो मतलब बढ़े. प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पर streaming platforms are run from big cities, and the big cities focus on those other big cities. वो एक corporate office में बैठ के strategies बनाते to reach the audience, but they are not fully in touch with how to reach the master audience, the audience in the rural markets. They have to learn from TV that level of penetration. गूगल, बेन और टेमासेक की अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि अगले 7 साल में 6-fold ग्रोथ होगा. $1 ट्रिलियन के आसपास का ये अनुमान उन्होंने लगाया. और उनका ये बहुत स्पेसिफिकली मानना है कि जो रूरल पेनिट्रेशन है वो 6-fold बढ़ेगा, 5 to 6 टाइम्स उसका पेनिट्रेशन बढ़ेगा. और OTT का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी वहीं से आएगा. Correct. Yeah, so that is a valid point. And that has been something traditionally. FMCG companies, multinationals, have struggled with reaching rural markets always, and I'm seeing a similar pattern with OTT consumption. There's a struggle to reach those markets because we don't understand them. We don't know how, the micro marketing जो होती है, वो माइक्रो मार्केटिंग हम किस तरह से करें. हाउ डू वी रीच देम, हाउ डू वी गिव देम अ मॉडल जिसमें मतलब पूरी कम्युनिटी बैठ के एक साथ में स्ट्रीमिंग का लुत्फ उठाए. वो शायद हर हाउस होल्ड अफोर्ड ना कर पाए, शायद हर हाउस होल्ड में उस तरह का टीवी, स्मार्ट टीवी ना हो. तो वो जो कम्युनिटी व्यूइंग एक्सपीरियंस को हम किस तरह से ऑडियंसेस तक ले जा सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा मतलब there has to be a little bit of a reality check from the people who run the platforms or who strategize this kind of reach. आप विदेश में बैठ के इस देश की रूरल पॉपुलेशन तक पहुंचने का without understanding that population आप काम नहीं कर सकते. So you think that internet economy will play a very big role? Absolutely, it's already playing a big role. You see the the penetration of mobile phones in India. I mean, the density of mobile phones is largest anywhere in the world. And if that is the case, then content should be consumed with the same amount of density. हो क्या गया है कि the consumption is there content का, but that content is that short, very short format. Content is available free on social media. And उसका consumption इतना बढ़ गया. So the big competition that OTT is facing is not actually from the other platforms. हर platform का अपना एक differentiation है in the kind of programs that they supply, and that all of them are striving to supply a certain quality. But the competition is with Instagram, the Reels. The competition is with the TikTok kind of videos. So वो competition को आप कैसे combat करोगे? How will you engage with an audience that is busy scrolling up and down watching 30 seconds for the same amount of time that they would spend binging on a scam or a scoop? Correct. So हमारा competition उसके साथ है और वो हमें realize करना ज़रूरी है.
But you read a lot और आपको खाना बनाने का भी बहुत शौक है. अभी फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं आप? फिलहाल कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ मतलब मैं फिलहाल स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ. How do you manage your time with reading? I mean, कोई पैटर्न आप फॉलो करते हैं या वेल आपको ताज्जुब होगा, ये यहाँ जितनी किताबें रखी हुई दे ऑल फूड books, they all food books. So it is my greatest relaxation is reading books on food. And मतलब हर हफ्ते 3-4 नई नई किताबें आती है. एंड मतलब मैं फूड की रीडिंग में भी इट्स वेरी बेसिक रीडिंग में रेसिपीज पढ़ता हूँ. आई रीड देम, आई ट्राई टू इमेजिन कि कैसे बनेगी. तो अगर आप रियल लाइफ स्टोरी नहीं पढ़ रहे हैं अभी किसी की स्कैम और स्कूप जैसे, तो क्या आप खाना खजाना रिवाइव करने वाले हैं? कोई चैनल लेके आने वाले हैं या कोई सीरीज चालू करने वाले हैं? वेल हमेशा मैं मतलब कब से सबको प्रपोज कर रहा हूँ. मैंने नेटफ्लिक्स को बहुत बार कहा कि भाई शेफ्स टेबल इंडिया अगर आप बनाते हो तो मुझे पिच करने देना टू शूट इट. आई एम ऑल्सो संजीव कपूर के साथ बातचीत हो रही है टू मेक हिज बायोग्राफी. उसमें दुविधा ये है कि उस बायोग्राफी में मेरा भी कैरेक्टर होगा, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए एक दुविधा है कि मैं अपने आप पर मतलब वो मैंने बायोग्राफीज शूट बनाई है, मुझे ऑटोबायोग्राफी बनाने नहीं आता है. आपकी लाइफ का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन क्या है? मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन आई थिंक इज फैमिली. वाह. Family, it's just having them around, I think is a source of great courage, inspiration, and a reminder that with all the ups and downs in life, there is one thing that is permanent. That is the love of your dear ones. What scares you most? सबसे बड़ा डर क्या है आपका? कि मैं फिल्म मेकिंग भूल जाऊंगा. गेट अप इन द मॉर्निंग और मुझे कुछ नहीं पता होगा. तो एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि हमारा बिजनेस का प्लेटफॉर्म भी है. आप इन्वेस्ट करते हैं? करता हूँ. आई एम वेरी कंजर्वेटिव क्योंकि इन द पास्ट आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, सो मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ. आई इन्वेस्ट मोर इन डेट एंड आई इन्वेस्ट ऑन माय ओन. मतलब मैं ये एडवाइजर फाइनेंशियल प्लानर नहीं? बातें करता रहता हूँ, लेकिन मतलब मैंने आई अंडरस्टैंड इट क्वाइट वेल एंड आई नो कि मैं रिस्क कितना अपना लेना चाहता हूँ. सो मैं आई कैन इंटरप्रेट द ग्राफ्स. मेरी वाइफ काफ़ी अच्छी है इन्वेस्टमेंट में, सो मैं आई आस्क हर ऑल्सो एंड आई इन्वेस्ट मोर इन डेट. करंटली आई एम मोर इन्वेस्टेड इन डेट. रिटर्न कम है लेकिन इट्स सेफ. एक जो बेसिक सेफ्टी होती है, आई बिलीव कि बच्चों के एजुकेशन के लिए और उसके लिए यू शुड कीप अ फंड इन अ सेफ प्लेस. एंड उसके ऊपर एक है अमाउंट जिसमें मैं रिस्क खेलता रहता हूँ, विच इज़ थोड़ा सा यूएस स्टॉक मार्केट्स में मैंने आई हैव इन्वेस्टेड इन दोज ईटीएफ्स. ईटीएफ्स में इन्वेस्ट किया है. देन देयर इज लिटिल बिट सम मनी आई पुट इन थ्रू वेंचर कैपिटल फंड. थोड़ा सा small amounts of money. तो वो those are that is the amount of money that I have कि भाई गया तो गया. Okay. हाँ. So you are a avid risk taker also and very conservatively. I'm risk averse, but I decide on the risk कि इतना पैसा, because I have lost money, so much money in the past कि losing money doesn't scare me. but you have to be disciplined when you invest in the So market. I'm fairly disciplined. मतलब है थोड़ा, there's a certain recklessness in my spending on traveling and on certain luxuries, on spending on the kitchen, but it's a gift I give to myself. I'm working hard if I'm earning money. So those are the things I like. घड़ी मुझे अच्छी लगती है. Like, so I've invested in watches. So it's actually an investment. All my watches are now, more expensive than when I bought them. So their market value is up. So थोड़ा सा watch market में थोड़ा बहुत समझने लगा हूँ, but I buy them because they look good. आप लोग का काम बहुत ग्लैमरस होता है सर, और कभी पैसा आता है कभी पैसा नहीं आता है. आपकी फाइनेंशियल लाइफ को प्री स्कैम पोस्ट स्कैम में भी अगर डिवाइड किया जाए, हाउ डू यू मैनेज योर मनी? I'm very, I've not been very great with managing money in the past. I've made films very often with my own money, with the money borrowed from people, with money from my family.
and it has landed me into constant, cycles of debt, to which I have very fastidiously tried to, get rid of. And yes, in the last few years there has been little more money, so I'm a bit careful with it. I'm not very crazy about spending it, but yes, I like to enjoy my money. जो भी पैसा है, I enjoy it. I like watches, I like traveling, and I like traveling well. I like staying in good places, and I collect too many appliances. So मतलब my kitchen is full of appliances. My family, my house, they are tired of the amount of things I buy for the kitchen. तो इन्वेस्ट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक छोटा सा और एक सवाल है। मुंबई के गोरेगांव वेस्ट में आपका एक घर है, पुणे में भी आपके घर की प्रॉपर्टी है, अलीबाग में है, लोनावला के पास भी आपका एक घर है। ये सब आपको कहाँ से पता चला? आप इनकम टैक्स में काम करते हो? सर स्कूप हमारे पास ही होती है, लेके आई हूँ मैं। तो यहाँ आप रेंट पे रहते हैं, ऐसा क्यों? मतलब ऐसा कोई हमने बहुत पहले डिसाइड किया था। आई हैव अ हाउस इन बॉम्बे, आई हैव a house in near अलीबाग. It's not exactly in अलीबाग, अलीबाग से थोड़ा बाहर है. वो घर बन रहा है. It's just being made right now. वो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको. एंड मैंने डिसाइड किया कि मुझे जहाँ रहना है रहूँगा, लेकिन मैं रहने के लिए स्ट्रेस नहीं लूँगा कि मतलब EMI भरनी है, ये करना है, वो करना है. आई डोंट वांट टू बी इन दैट मैड रश, एंड देयर इज वेरी बेसिक फाइनेंशियल कैलकुलेशन जो आजकल बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स कर रहे हैं. आई सी द लॉजिक ऑफ दैट कि इफ आई काउंट इन द बेस्ट पॉसिबल हाउस द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेंट आई पे, अगर मैं वो रेंट 10 साल तक इन्फ्लेशन के साथ भी देता गया, इन कॉस्ट ऑफ मनी के साथ भी देता गया, फिर भी उस तरह की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो मुझे चाहिए वो बहुत ज़्यादा होगा. सो मैं मतलब अजय देवगन का डायलॉग है कि मेरी ज़रूरतें कम है, क्योंकि मेरी नीयत में दम है. तो एक रैपिड फायर खेलते हैं आपके साथ, बट कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट थॉट आएगा आप उसी पे वही बताना होगा आपको. सो नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार या ZEE5? नेटफ्लिक्स. फेवरेट जॉनर ऑफ फिल्म? ड्रामा. फेवरेट स्पोर्ट्स? क्रिकेट. बेस्ट डायरेक्टर? क्रिस्टोफ किस्लोवस्की. फेवरेट एक्टर? दिलीप कुमार. फेवरेट एक्ट्रेस? You want to pass it? No. I'm just trying to think. There's so many. But yeah, I think Shabana Azmi. Oh wow. Favorite food या cuisine? Lucknowi. Oh. And one word to define your personality? Laid back. Laid back. Really? सर आपसे बात करके बहुत मजा आया. लगा नहीं कि आप laid back हैं, आप fully well informed हैं. Thank you so much for giving your time, sir, and thank you viewers for tuning in. शुरुआत मैंने की थी, लेकिन एंडिंग तो स्टाइल के साथ होनी चाहिए हंसल जी की, क्योंकि डायरेक्टर ही रैप करता है. ओवर टू यू सर. Back up.